Yes, good afternoon, Abhinandan. गुड आफ्टरनून सर। अभिनंदन, ये कैमरा ऑन कर लो बेटा। क्या डिफिकल्टी आ रही है? यस सर, वो मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा, मैंने ऑन किया हुआ लेकिन आपको शो नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है। हेलो, ਉਹ ਮੈਂ ਭੇਜਤੀ ਸਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ WhatsApp ਕਰਤੀ ਓਕੇ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। यस, जैस्मीन, अभिनंदन, जसलीन, बेटा अपना कैमरा ऑन कर लो सारे। So other students are joining in, so we will wait for a couple of minutes before the other joining in. Yes, आप में से किसी ने क्लाउड के बारे में पढ़ा कुछ और? क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कुछ पढ़ा हो? AWS के बारे में सुना किसी ने? AWS नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं, आज आपको ये यहीं से स्टार्ट करेंगे आज हम लेक्चर। AWS is a services provided by Amazon. Amazon का नाम सुना है किसी ने? यस, जसलीन आप बताओ, Amazon के बारे में बताओ। So Amazon is the shopping site from which we could buy the goods. ठीक है, जैसे आजकल मेरे को लगता है उनका कोई ना कोई वो फेस्टिवल ऑफर आ रहा होगा उनका, क्लियर, इन दिस मंथ दे तो ये उनका वन ऑफ द एस्पेक्ट है ऑनलाइन शॉपिंग, बट ये नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग के अलावा दैट इज आल्सो ए वेरी बिग प्लेयर इन क्लाउड कंप्यूटिंग आल्सो. So today we will look at one video also that person will highlight the importance and the free services provided by AWS also. AWS is Amazon Web Services. ऐसा अमरवीर से पूछते हैं, अमरवीर आपने सुना है AWS के बारे में, Amazon Web Services? So other students are joining in, so
So we will start the today's lecture with AWS service, and because we are already studying about the cloud, so Amazon is a big player in the cloud market. And copy pen ready रखना अपना सारे. Everyone should be ready with copy and pen. So let us start with the today's lecture with the video about the AWS. So about the AWS, I have already told you that is this is the service provided by Amazon. तो Amazon जो शॉपिंग हम देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए Amazon यूज करते हैं, दैट इज देयर वन ऑफ देयर एस्पेक्ट है, ठीक है, बिजनेस का. एंड दैट इन क्लाउड कंप्यूटिंग दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर, and its competitors are like Microsoft, Google. These are the competitor of Amazon. So now let's start with the What is AWS? More like, what isn't AWS? AWS, or Amazon Web Services, is Amazon's cloud computing platform. Yes, Amazon is more than an online retailer. Like yes, ये साउंड आ रही है सभी को? Yes, sir. is AWS? More like, what isn't AWS? AWS, or Amazon Web Services, is Amazon's cloud computing platform. Yes, Amazon is more than an online retailer. Like many leading cloud platforms, AWS includes a mixture of infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service offerings. So this was the point that we were discussing yesterday. ठीक है, तो जो हम कल पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, software as a service, and platform as a service. So all these points are covered up here. Platform as a service and software as a service offerings, providing organizations with tools like compute power, database storage, and content delivery services. Amazon launched AWS in 2006 to handle its online retail operations, and Amazon was one of the first companies to introduce scalable, pay-as-you-go cloud computing model to provide users with compute, storage, or throughput as needed. Government agencies, education institutions, nonprofits, and private organizations all use AWS. AWS is comprised of 24 product categories, like networking, development tools, security, and governance, that encompass specific services, like Amazon EC2 for virtual computing, Amazon Route 53 for scalable domain name system, and AWS Amplify for building apps. AWS even has services for gaming, messaging, virtual reality, and general business productivity. Basically, AWS has something for almost everybody, and each service can be configured based on a user's particular needs. Over time, AWS has added services that helped make it a highly available, scalable, low-cost infrastructure platform.
AWS also has data centers placed around the world, competing primarily with Microsoft Azure, Google, and IBM. What does your organization use AWS for? Let us know in the comments below, and please remember to hit the like button. So that is a bit basically a highlight about the AWS. तो AWS में बहुत सारी services which are free and which are available free of cost. And AWS has already tied up with the government of India and the different non-profit organizations. Clear, like schools are there. Clear. So its number of services are available free of cost. So you can think of आप इसको थोड़ा चेकआउट भी कर सकते हो. Clear. You can go and check its website. तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा इसके बारे में AWS सर्विसेज के बारे में. So what are the different types of services are being provided? ये देखो networking है, security है, जितने different domains है, all the domains are covered up in the AWS services. So that's why the importance of cloud comes into being. Clear? And you know that Amazon is the very first company that has come out with the cloud-based platforms. And initially it was having 70% of the market share. Now might have its market share might have decreased because now the other players like Google and Microsoft are penetrating like anything. Clear? So this was about any other point that you got from the कोई highlighting point आपने note किया हो, number of points, because no in this 1.5 minute sort of a video, number of points are covered up. Clear? But it's very difficult for a person to catch up all the points. But still, whatever you have valuable things you have noted down. Yes, we start with the Amarveer. Yes. Sorry. Now you will be able to. Now you will be able to unmute. Yes, Amarveer, now you can unmute. So here it was described that Amazon is not only limited to buying and selling of products, and numerous other services are given by Amazon. And we are all aware about one of the engine of Amazon which helps to develop Amazon Lempar. So many other services are also being provided by Amazon, which helps big or small organizations to work, and cloud computing is one of them. Yes. तो एक्चुअली क्या है कि इंडिया में हमारी परसेप्शन अभी तक यही बनी हुई है कि जो Amazon है वो that is there for only is a basically online shopping के लिए हम यूज करते हैं, but that is not the case. And in cloud services, this is one of the biggest player in the market. Clear? So that is the one key point that was highlighted in this video. Yes. Any other point someone else has noted down? एक वहां पे आया था scalable point आया था, scalable. So scalable means what we meant by the term scalable. Anyone? That is the basically term related with business. So scalability means कि जैसे कोई भी organization है, clear? तो आज वो ज्वाइन कर रही है, बट लेटर ऑन इट्स बिजनेस विल इंक्रीज. तो स्केलेबिलिटी मींस जैसे अगर हम स्कूल्स की एग्जांपल लें तो लेट से आज हो सकता है कोई नया स्कूल खुला है तो उसकी स्ट्रेंथ 100 है, कल उसकी स्ट्रेंथ 200 हो जाएगी, 400 हो जाएगी, 500 हो जाएगी और 1000 हो जाएगी. तो दैट मींस स्केलेबल मींस जो उसकी सर्विसेज हैं दे आर स्केलेबल एज द नंबर ऑफ यूजर will increase, so the services will be able to handle the more and more number of customers. क्लियर? जैसे आप देखो कि अगर आप जियो की बात करो तो जियो कोई भी आप कंपनी ले लो कि जो उसका डे 1 में कस्टमर है, धीरे धीरे करके उसका कस्टमर बेस क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है. दैट इज द बेसिकली स्केलेबिलिटी. क्लियर? कि शुरू में कम कस्टमर्स हैंडल करने पड़ते हैं, लेटर ऑन द नंबर ऑफ कस्टमर्स आर गोइंग टू इंक्रीज. क्लियर? एंड एक पॉइंट था वहां पे पे पर यूज. Pay per use means anyone who can elaborate this point. Pay per use.
other than Amarveer. So we'll shift the load to someone else. Yes, बड़ी simple सी term है, pay per use, not a sort of a very difficult term, is very commonly used in business. Yes, Amarveer, you want to say, because So pay per use basically depends upon the size of the organization. For some organizations, members are more and for some are less. So pay per use depends upon the size of the organization. How the number of employees are there, you pay according to that. यस यस यस, तो बेसिकली पे पर यूज में क्या है, बेसिकली एक तो नंबर वन पॉइंट ये हो सकता है कि कितने यूजर यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है। अगर तो एक सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को 5 यूजर काम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा, अगर 50 यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा। सेकेंडली दैट कैन बी द टाइम फैक्टर आल्सो, ठीक है, तो कितने टाइम के लिए आप उस सर्विसेज को अवेल कर रहे हो। सो दीज आर दी पैरामीटर बेस्ड ऑन पे पर यूज। क्लियर, जितना हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें पे करना पड़ेगा। सो दैट इज दी अनदर सर्विस, ठीक है। बाकी आप इसके अंदर बहुत सारा खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो, दैट नंबर ऑफ AWS सर्विसेज आर फ्री। तो जितनी फ्री सर्विसेज हैं यू कैन चेक इट आउट, तभी आपको थोड़ा क्लाउड के बारे में और थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी कि क्लाउड सर्विसेज बेसिकली कैसे काम करती हैं, ठीक है। मैं तो ऐसे ही बेसिकली सुबह न्यूज सुन रहा था, तो न्यूज में वो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि Amazon has tied up with the government of India to basically innovate in the cloud services domain. तो मेरे को लगा कि दैट इज द वाइटल पॉइंट टू डिस्कस, बिकॉज ऑलरेडी हम क्लाउड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आप लोग खुद भी इसको एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। क्लियर, आई कैन शो यू दी वेबसाइट फॉर AWS। So here in this screen you can see this screen and create an account। आप फ्री में इसके अंदर AWS के अंदर अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। So start building an AWS today। So this is the Amazon Web Services। So different services are provided here, starting from analytics, application integration। अभी हमने augmented reality के बारे में, virtual reality के बारे में पढ़ा था। AWS cost management, blockchain, database, customer engagement, containers, compute, और देखो कितनी सारी सर्विसेज यहाँ पे which are being provided here। Numerous services are there, solutions are there, hybrid cloud solutions। So number of services are free and you can create an account here and you can make use of the free services which are there, ठीक है। What is AWS है क्या? So you can see here I have taken the video from this website only। Clear? तो बाकी इसको एक्सप्लोर करना, so that is all up to you that you want to explore something or not। Clear? Any other point you have related to cloud, so we can discuss, or we shift to the practical topic that we have started yesterday। यस, कोई पॉइंट नहीं है किसी का? एवरीवन इज ऑल क्लियर? So now we shift to the MySQL। So now we will try to move to the MySQL screen।
So this is the command prompt, or it is. Can someone tell me that what is the message here? It is displayed here. Can't connect to MySQL server on local host. कोई बता सकता है रीजन इसका? सर एग्जाम से आपने वो स्टार्ट नहीं किया सर, पर और वो दोनों चीजें सर। हाँ, वेरी गुड। So now we move back to the MySQL, just using the arrow keys, and yes. What is the very first statement? How we can see the different databases? शो database सर। Show databases. Clear? So these are the list of databases that we have. और कल हमने ये grade 11 वाला database create किया था. So for that we have to use grade 11. Clear? So here you can see the list of tables. So we have just one table is there, student table, and let us say select star from student. So these are the attributes we have. So let's say we want to add the city attribute, हम इसके अंदर add करना चाहते हैं. तो ये ऑलरेडी हमारे पास एक टेबल है, इसके अंदर अब हम सिटी टेबल इसके अंदर क्या करना चाहते हैं, सिटी कॉलम ऐड करना चाहते हैं. तो कल हमने डिस्कशन किया था कैसे हो सकता है ये, हाउ वी कैन ऐड अप दी सिटी कॉलम using alter. So let's try with the alter statement. So alter table, and our table name is student, and then is add column, and column name is, let's say, city, and let's say its width is, let's say, 30. Okay, so it's okay, and now you can see the select statement, and you see the city has been added here, but it is saying there is no value inside the city for these two records. So how we can now put up the values? Using a statement. Yes, using Insert statement. insert statement. किसने बताया ये insert statement? अब ये नहीं कोई बताएगा कि किसने बताया insert statement. Yes, मुस्कान, ये insert statement से नहीं होगा, because no, insert statement से जब हम कोई new row ऐड करते हैं तब हम insert statement का यूज कर सकते हैं. अब ऑलरेडी उसके अंदर रो इंसर्टेड है. नाउ वी हैव टू मेक यूज ऑफ अपडेट स्टेटमेंट. Yes, so update statement will be used to basically to change the city over there. So now moving back to that MySQL interface. So let's say we start with the update. हमने कल भी की थी update. So table name is student, and set city is equal to, let's say, the Chua, and where student ID is 101. So one row change, and you can see here with the select statement that now the Kumar city has been now changed to the Chua. Similarly, we can change the other city also. तो अब हम 102 का चेंज कर देते हैं सिटी 102, and let's say we make the city as now, let's say, Tanda. Clear? So one more city has been changed now. So now you can see with the select statement, this is the table that we have now. Clear? And the alter statement is very, very powerful statement.
The next we have to look upon the second. अगर हमने किसी भी existing कॉलम की डाटा टाइप को चेंज करना, तो उसके लिए भी हम किस स्टेटमेंट का यूज करते हैं? अल्टर स्टेटमेंट का. Clear? So how we can do that? इसके लिए हमारे पास अल्टर टेबल नेम and how to modify the alter column. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? That is first we will have to check upon the कि हमारे पास columns कौन-कौन से हैं. So desk and let's say we see the structure of the table. तो ये हमारे अब लेट्स से अब इस पर हम चेंज क्या करना चाहते हैं? लेट्स से कोई भी डाटा टाइप हम चेंज करना चाहते हैं. लेट्स से मार्क्स है जैसे, तो मार्क्स की अगर हम विड्थ चेंज करना चाहते हैं, वी वांट टू मॉडिफाई द विड्थ ऑफ मार्क्स. क्लियर? जैसे अभी 11 डिजिट यूज हो रहे हैं मार्क्स के लिए. क्लियर? सो हाउ वी प्रोसीड विद दिस वन? अल्टर टेबल नेम एंड देन अल्टर कॉलम एंड कॉलम नेम एंड डाटा टाइप. So you can note down alter table and then is our table name is student and the next is alter column and column name is let's say marks and we want to have teacher, let's say 3 only. तो अभी इसमें क्या है प्रॉब्लम? That is you have an error in your SQL syntax. Check that manual correspondent to your for the right syntax. So what will be the right syntax for this one? किसी को आइडिया है? Sir, it should be alter table, modify the column name. Key should be modify, not alter. अल्टर की जगह का क्या यूज करना है? मॉडिफाई यूज करना है. Yes, sir. अल्टर टेबल नेम और यहाँ पे मॉडिफाई यूज करें. Yes, well done. So this assistant came from who helped here? किसने बताया था ये? Bhavya. Yes, good. Basically Oracle में तो ये modify word ही यूज होता है. Basically I have taken the help from a website, वहां पे alter ही लिखा हुआ था. तो ये नहीं है कि वेबसाइट के ऊपर भी हर चीज ठीक है. So very well and timely assisted by Bhavya. और अब आप इसको चेक करना है. चेक कैसे करेंगे? अगेन यू सी नाउ दी, अब ये देखो पहले मार्क्स की जो डाटा टाइप है वो इंटीजर 11 है. अब चेंज के बाद फिर से हम डेस्क यूज करते हैं. डेस्क एंड नेम ऑफ द टेबल इज स्टूडेंट एंड यू सी नाउ द विड्थ इज नाउ, पहले क्या थी विड्थ इसकी 11 थी, अब इसकी विड्थ हमने चेंज करके क्या कर दी है? 3 सेट कर दी. तो दो नई स्टेटमेंट्स आज हमने जो जिसके ऊपर फोकस किया है. वन इज हाउ टू मॉडिफाई दी डाटा टाइप, एग्जिस्टिंग कॉलम की डाटा टाइप अगर चेंज करनी है, और यहाँ हमने नया कॉलम ऐड करना है. तो दो नई चीजें हमने अल्टर स्टेटमेंट से जो सीखी हैं. सो यू कैन नोट डाउन. एक तो ये है हमारे पास दी सिंटैक्स, ये आ गया हमारे पास अल्टर टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम. ये दोनों कीवर्ड है. मॉडिफाई भी कीवर्ड है, कॉलम भी कीवर्ड है. मार्क्स जो हमारा कॉलम नेम है, दिस इज ए कॉलम नेम एंड दिस इज द न्यू डाटा टाइप. प्रीवियस डाटा टाइप को ये रिप्लेस कर देगा. तो आप कम से कम अपनी कॉपी पे नोट कर लो हाउ टू मॉडिफाई दी डाटा टाइप ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉलम. बाद में भूल जाओगे आप. दिस इज नॉट वेरी इजी. इसको याद करने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी.
So I am explaining again. Alter table again is the keyword. Student जो है वो table name है. Modify is the keyword because we want to modify the data type. Column is the keyword. Marks is the name of the column, and this is the new data type, integer 3. Integer is the data type, 3 is the width. Clear? और इससे पहले जो हमने किया था, that is how to add the column. This is alter table, name of the table. Add is the keyword. Then we have a column is the keyword, and then city is the name of the attribute या column name जो हम add करना चाहते हैं, and this is the data type with the width. Clear? So this you can note down on your copies also. Alter table, table name. Add is the keyword, column is the keyword, and then is the name of the attribute or column, and then is the data type. Yes. So is it now clear to everyone? Yes, Harshita? Clear है? ठीक है, तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पहले क्लियर हो जाएगा, फिर बाद में ऑल क्लियर हो जाएगा, एंड इट विल नॉट टेक मच टाइम इन मेकिंग द थिंग्स ऑल क्लियर. ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके ये सारी चीजें इवेपोरेट भी हो जाएंगी. तो आज आप लोगों के लिए 2 टास्क है. एक तो ये जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसकी प्रैक्टिस करो, प्लस चेक आउट दी AWS सर्विसेज. AWS सर्विसेज में आप जितनी भी सर्विसेज हैं, बहुत सारी सर्विसेज उसके अंदर फ्री हैं, एंड यू कैन मेक यूज, यू कैन आप उसके अंदर आप अपना अकाउंट भी फ्रीली क्रिएट कर सकते हो, एंड देन यू कैन चेक दी थिंग्स. ठीक है, और एक दिन किसी की प्रेजेंटेशन रखवा देंगे AWS के ऊपर, कौन कौन सी सर्विसेज आपने यूज करके देखी हैं. ठीक है, कई बंदे सोच रहे होंगे सर तो ऐसे बोले जा रहे हैं, AWS का हमने क्या करना है. ठीक है, तो अगर आप इन सर्विसेज को थोड़ा सा, ये देखो थोड़ा सा हम इसके अंदर काम करेंगे तभी पता चलता है. डे 1 में तो इट्स नॉट कि हमें हर चीज क्लैरिटी हो इस चीजों के ऊपर. यस, एनी अदर क्वेश्चन यू हैव? नेक्स्ट प्रैक्टिकल कौन सा है हमारा? किसी के पास है प्रैक्टिकल लिस्ट? डाटाबेस का नेक्स्ट प्रैक्टिकल कौन सा है? यस, अमरवीर. So the next practical of database is basically to display the entire content of table. We have next practical number 19, to display whole number, name and marks of those students who are scoring more than 50. Okay, very good. Now there is a question by Vanshika. Where is Vanshika? So Vanshika ने पूछा है कि IBM क्या है? What is IBM? So the question who will answer? Yes, Gurleen Singh. गुरलीन तो खाने में बहुत ज्यादा बिजी है साथ साथ में. क्लास कम लगा रहा है. आज देखो, आज ये चुप क्यों बैठा हुआ है, साथ में खाई जा रहा है कुछ ना कुछ. तो यही मेथड है इसको चुप कराने का, कि इसको साथ में 2 दिन सेब पकड़ा दो और साथ में बोलो आप क्लास में आ जाओ. आप ये देखो कितनी फ्रीडम है. फ्रीडम देखो, दी डिग्री ऑफ फ्रीडम. स्कूल के अंदर होता है आप साथ में सेब खा रहे हो और क्लास में बैठे हो. आप सी दी सॉर्ट ऑफ फ्रीडम यू हैव. यस, कौन बताएगा IBM के बारे में? I think it is a software company. Yes, this is software company. Well done. And मेरे को पता नहीं चलता कौन बोल के चला गया है. जल्दी जल्दी किसने बोला? ये आंसर किसने किया है? Bhavya. भव्या. Myself, Bhavya. Bhavya, this is a no.
जैसे आजकल पता क्या है, आजकल गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, ये कंपनीज आगे आ गई हैं, बट यू नो पहले जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं आईटी फील्ड में, कंप्यूटर फील्ड में, एंड IBM वाज दी लीडर। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और इसका भी एक डाटाबेस है, जैसे MySQL जो है दैट इज नाउ ओन्ड बाय Oracle, ऐसे IBM का जो डाटाबेस है उसका नाम है DB2। सो दैट इज अ बिग कंपनी, बेसिकली IBM इज अ बिग कंपनी, but now the other companies have taken over this IBM. So very good question by Vanshika। और भी 2-3 कंपनीज का नाम लिया था, एक गूगल का नाम लिया था उसने, एक IBM का नाम लिया था, और एक माइक्रोसॉफ्ट का नाम लिया था। Maybe I think these 3 companies which have been spoken in that video also. Clear? तो ये है बेसिकली, हमें आईटी के अंदर ये नहीं है कि पाइथन का ही पता होना चाहिए, आईटी के अंदर कितनी बड़ी कंपनीज हैं। और देखो इंडिया के अंदर, इंडिया 2 मेजर सेक्टर्स में लीड कर रहा है। आपको पता है कौन से 2 मेजर सेक्टर्स हैं जिसके अंदर इंडिया लीड करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर सर, एंड आईटी सर, आईटी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, आईटी एंड एग्रीकल्चर। और एप्पल में भी काफी कर रहा है, और साथ साथ में तो इम्प्लीमेंट करी जा रहा है। ठीक है, तो इसने एक सेक्टर सही बोला है, दैट इज द आईटी सेक्टर, एंड द सेकंड सेक्टर इज नॉट द एग्रीकल्चर सेक्टर। यस, व्हाट इज द अदर सेक्टर वेयर इंडिया इज वन ऑफ द लीडर इन द वर्ल्ड? Yes, the second sector is pharmaceutical sector। ठीक है, तो जो सेकंड सेक्टर है जिसके अंदर इंडिया इज वन ऑफ द गुड प्लेयर इन द इंटरनेशनल मार्केट इज द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में से कोई मेरे को दो इंडिया की कंपनीज का नाम बता दो, बस 2 पूछी है, 200 से ज्यादा कंपनीज हैं, कोई 2 कंपनीज का नाम बता दो। और घर पे कभी कोई, आपके घर पे कोई बंदा कोई मेडिसिन नहीं यूज करता कोई भी? या बस उसका कलर देख सर सिप्ला। सिप्ला, वेरी गुड। सो द आंसर इज गिवन बाय श्रिया, वेरी गुड। अमरवीर, यस Sir, there is a Lupin Limited. यस, लुपिन इज अ ह्यूज कंपनी। सो यस, इसके अलावा कोई और बताओ भाई, बाकी भी थोड़ा बर्डन लो, 2 बंदे ही बर्डन लिए जा रहे हैं क्लास के अंदर। सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, सन फार्मा है, एंड दीज आर दी ह्यूज कंपनीज इन इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट है कि जैसे आपने आईटी सेक्टर के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, इंडिया की आप टॉप 10 कंपनीज के बारे में बता सकते हो? आईटी सेक्टर में कौन सी इंडिया में टॉप 10 कंपनीज हैं? बताओ 1 by 1। आप समझो कि लास्ट में केबीसी शुरू हो गया है। यस सर हाँ, नवदीप सिंह इज विद कौन सी कंपनी बोली है? एक कंपनी बता के साथ में भाग गया है ये। यस, नवदीप सिंह 4 ऑप्शंस पूछ रहा है मेरे से। फिर तूने क्या करना है? ये ऐसा केबीसी नहीं है जिसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, दैट इज विदाउट केबीसी, विदाउट ऑप्शंस। सर टाटा। टाटा नहीं है, उसका नाम है TCS। दैट इज द टाटा इज बेसिकली द ग्रुप नेम है टाटा का। सो TCS द कंपनी ओन्ड बाय द टाटा ग्रुप। यस, TCS के अलावा सर टेक महिंद्रा। सर मे बी इन्फोसिस। हाँ, इन्फोसिस, डेफिनेट इन्फोसिस। विप्रो है, गुड, भव्या हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड। और सर HCL टेक्नोलॉजी। गुड। HCL इज इन द टॉप 10। और जैसे एक आपने सुना होगा नाम एक्सेंचर है, फिर कॉग्निजेंट है, माइंडट्री में भी, माइंडट्री इज अनदर कंपनी। यस, गुड कंट्रीब्यूशन बाय डेल may not be in the डेल बेसिकली थोड़ी वो मैन्युफैक्चरिंग की साइड पे चली जाएगी, ठीक है, इन द लैपटॉप और लाइक दैट। सो द कंपनीज वी हैव डिस्कस्ड आर इन द टॉप 10, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और इंडिया में कौन सी लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, बिगेस्ट आईटी कंपनी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर आल्सो, जिसके पास सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं?
सर TCL के पास, हाँ कौन सी कंपनी? TCL सर, यस सर टाटा TCL, हाँ फुल फॉर्म क्या है इसकी? टाटा कंसल्टेंसी आगे नहीं बता, सर्विस या लिमिटेड पता नहीं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। Consultancy. यस गुड। तो कम से कम आज हमें थोड़ा सा हेडलाइन थोड़ा सा पता लग गया है, ठीक है। सो ट्राई टू बेसिकली गो इनटू दीज पॉइंट्स। तो ये नहीं है कि हमने एक अपना सब्जेक्ट पढ़ लिया है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम द आईपी साइड। सो एट द एंड किसी का कोई और पॉइंट है, एनी अदर पॉइंट यू वांट टू ब्रिंग इन? सर जो AVM होता है, जो आप बोल रहे थे अमेजोन वाले का, हाँ जी सर, AWS। उसमें वो अपना सर्वर, हाँ जी सर, उसमें वो अपना सर्वर बना के फिर क्या कहते हैं उसको हम लिंक कर सकते हैं कोई भी उस पे। ये यूज करके देखो डेफिनेटली अगर तो वो फ्री सर्विसेज वो बोल रहा है तो डेफिनेटली ही विल बी शेयरिंग द रिसोर्सेज। जैसे के अंदर डिस्कस किया था प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, देन इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो उसकी इसी वीडियो में एग्जांपल भी डिस्कस की है कि कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो AWS के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। तो थोड़ा सा आप इसके अंदर थोड़ा आप इसको थोड़ा चेकआउट करो एंड देन यू विल बी हैविंग थोड़ी क्लैरिटी भी आएगी आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि अगर हम AWS के बारे में बहुत सारा पढ़ना शुरू कर देंगे तो बाद में ये ना हो कि बच्चे भूल जाएं कि हमारी आईपी की भी क्लास चल रही है। और कई बार पढ़ाते टाइम मेरे को बाद में बच्चे पूछते हैं कि सर ये सिलेबस में है या नहीं है। सो देन आई हैव टू आल्सो कीप ऑन लुकिंग एट द सिलेबस आल्सो। बट ये मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज आई हैव हर्ड अबाउट दिस पॉइंट और मेरे को लगा कि दिस इज द पॉइंट टू बी शेयर्ड। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था क्लास के अंदर कि जब हम चीजों को थोड़ा रियल लाइफ के साथ रिलेट कर पाएंगे सो तभी हमारी लर्निंग जो है दैट विल बी इफेक्टिव। अगर हम बस उसको पढ़ लिया और जैसे नवदीप पूछ रहा है हमें 4 ऑप्शन दे दो, 4 ऑप्शन दे दिए तो फिर तो काम ही खत्म हो गया है, ठीक है। तो केबीसी का लेवल हमारे लेवल से लो लेवल है, दैट इज वी आर एट ए हायर लेवल देन द केबीसी, थिंक इन दैट टर्म्स, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इनटू द क्लास। थैंक यू मैडम। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.